Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we are going to discuss about MTP, that is medical termination of pregnancy. Right, so what is the medical termination of pregnancy? That is the termination of pregnancy either by medical or surgical methods. Okay, so first of all, this act has came in 1971, but in India it is enforced in 1972. Okay, so 1971 में तो आया, but in 1972 में in India it is enforced, right? And then again थोड़ा changes आया है, that is amendment in 2022. So 2022 में amendment आया है and many things has changed in this year. So you have to know कि what all the changes has occurred, because this is important. It can be asked in the exam, right? So first of all, indication of MTP, very simple, you know very well, that is if there is risk to mother's life. So if the continuation of pregnancy have risk to the mother, so then it is the indication. If there is major fetal congenital anomalies or pregnancy by rape or pregnancy due to failure of contraceptive, so these are the indication of MTP, right? So the most important part is that key, let's suppose a woman came for MTP, then what all the things you have to kept in mind. So the first important thing that is asked in the exam, that is a consent, very very important. So consent कौन देगा? उनके husband देंगे, उनके mother-in-laws देंगे, कौन देंगे? So that is very very important points. So consent is only by self. There is no role of husband, there is no role of in-laws or mother or father, and no one. Okay, so consent कौन देगा? Mother itself will give the consent, right? But if the mother is mentally unstable, mentally retarded or less than 18 years की है, then कौन देगा? Then guardian will give. Okay, so this is an important point you have to remember. The second thing is कि the person who will do MTP, उनकी qualifications क्या होनी चाहिए? So the qualifications for doing MTP is कि either कि वो registered medical practitioners तो होने चाहिए and who assisted 25 MTP at least. Okay, so registered medical practitioner who assisted in 25 medical termination pregnancy. Second qualification होना चाहिए कि RMP, registered medical practitioner who has done 6 month job in obs-gynae या फिर डिप्लोमा और डिग्री इन ऑब्स-गायनी में होना चाहिए. सो दिस 3 आर द क्वालिफिकेशन दे शुड हैव, है ना, ईदर वन. ठीक है. थर्ड हमारा है कि हमें पढ़ना है कि 1971 में क्या क्या था एंड 2022 में क्या क्या चेंजेस हुआ है, राइट? सो 1971 में क्या था कि MTP कैन बी डन अप टू ओनली 20 वीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट नाउ इन 2022 इन द न्यू अमेंडमेंट क्या चेंजेस हुआ है कि नाउ MTP कैन बी डन अप टू 24 वीक in case, very very important, 3 criteria. If the female is minor, if she is mentally unstable or pregnancy by rape and incest, then in these condition pregnancy can be terminated in 24 week also. Okay, so earlier it was only up to 20 week था, but now it is 24 week तक extend कर दिया गया है. ठीक है. Then MTP can be done up to 20 week in 1971 if the pregnancy is because of the contraceptive failure. Then in 1971 the MTP can be done till up to only 20 week, but now it is 20 week अभी भी सेम है. Okay, so if the pregnancy is because of the contraceptive failure, it is still 20 week तक ही हम MTP कर सकते हैं. So 1971 में भी सेम था और 2022 में भी सेम है. ठीक है. सो ओनली वन चेंजेस आपको क्या याद रखना है अभी तक, दैट इज अप टू 24 वीक इन 3 कंडीशन, माइनर फीमेल, मेंटली अनस्टेबल और प्रेगनेंसी बाय रेप एंड इंसेस्ट. ठीक है. इफ देयर इज फीटल एनोमली होगा, देन इन 1971 में MTP कब तक कर सकते थे? 20 वीक तक ही कर सकते थे. सो लाइक सिंपल बोले तो 1971 में इन ऑल केसेस MTP कैन बी डन अप टू ओनली 20 वीक, बट इन 2022 में क्या हुआ है कि इट कैन बी डन अप टू 24 वीक एंड इन केस ऑफ सीवियर कंजेनाइटल एनोमलीज देयर इज नो अपर लिमिट, इट कैन बी डन अप टू 28 30 वीक कभी भी कर सकते हैं. ठीक है.
So in case of fetal anomaly, it can be done up to 24 weeks, but in case of severe congenital anomaly, no upper limit for termination of pregnancy, but it can be decided by a board. एक बोर्ड बैठेगी प्रॉपर एंड वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। एंड उस बोर्ड में कौन कौन से होने चाहिए, डिसाइडेड बाय द मेडिकल बोर्ड। एंड मेडिकल बोर्ड में टोटल 4 इंपॉर्टेंट पर्सन होने चाहिए, दैट इज गायनेकोलॉजिस्ट होने चाहिए, पीडियाट्रिशियंस होने चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट होने चाहिए, एंड पर्सन असाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो ये 4 लोग, 4 इंपॉर्टेंट पर्सन शुड बी इंक्लूडेड इन मेडिकल बोर्ड एंड दे विल डिसाइड कि हाँ टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट यूजुअली अप टू 24 वीक तक इन फीटल एनोमली में वी कैन डू एमटीपी, ठीक है। सो 4 कंडीशन यू हैव टू नो, रिमेंबर। For MTP up to 24 week, that is minor female, mentally unstable, pregnancy by rape and incest, and 4 is a fetal anomaly, right? देन कमिंग टू कि 1971 में क्या था कि अगर आप अप टू 12 वीक तक एमटीपी करते हैं तो ओनली सिंगल डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए, ओनली सिंगल डॉक्टर्स विल इन्वॉल्व। बट इन 2022 अप टू 20 वीक तक के लिए भी ओनली सिंगल डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए। एंड अगर आप 12 टू 20 वीक पे अगर एमटीपी कर रहे हैं, then in 1971 में 2 डॉक्टर्स ओपिनियन इज नीडेड, बट नाउ टिल 20 टू 24 वीक तक भी ओनली 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए, 2 डॉक्टर्स नीडेड होंगे, ठीक है। सो दैट इज द चेंजेस दैट अकर फ्रॉम 1971, ठीक है। Then coming to the very important part, that is the methods of MTP, कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम कैसे करेंगे, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसे करेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो देखो वी हैव 2 मेथड, इधर मेडिकल इधर सर्जिकल, राइट। सो देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास एक मेडिकल मेथड है, एक हमारा सर्जिकल मेथड है, ठीक है। सो सर्जिकल में हमारा लाइक सक्शन एंड इवैक्यूएशन है, मेंस्ट्रुअल वैक्यूम एस्पिरेशन है, एंड मेंस्ट्रुअल रेगुलेटर सिरिंज है। सो 3 हमारे सर्जिकल मेथड है और हमारा एक मेडिकल है। सो मेडिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट कॉमनली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम यूज करते हैं। सो मेडिकल में क्या है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर द बेस्ट मेथड इज मेडिकल अबॉर्शन। सो इन इंडिया हम क्या फॉलो करते हैं कि अप टू 7 वीक तक द बेस्ट मेथड इज मेडिकल। सो अप टू 7 वीक ओपीडी बेसिस पे करेंगे, हम क्या देंगे, सो वी हैव डे 1। सो डे 1 पे हम देंगे टैब मिफिप्रिस्टोन 200 mg ओरल। देन ऑन डे 3 हम क्या देंगे, टैब मीजोप्रोस्टोल 400 माइक्रोग्राम इधर ओरल, बक्कल, परवेजाइनल और पर रेक्टल। सो डे 1 200 मिफिप्रिस्टोन एंड देन 400 माइक्रोग्राम मीजोप्रोस्टोल। एंड देन डे 15 पे अगेन हम वुमेन को बुलाएंगे फॉर टू इंश्योर प्रोसेस हैज कंप्लीटेड और नॉट। सो बाई अल्ट्रासोनोग्राफी एंड ऑल हम कंफर्म करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो प्रॉपरली अच्छे से कंप्लीटली बाहर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। सो ये हमारे इंडिया में बेसिकली ये है, अप टू 7 वीक तक हम ये फॉलो कर सकते हैं। एंड ये हमारा ओपीडी बेसिस पे होता है, इसमें हम वुमेन को एडमिट की नीड नहीं होती है। बट अकॉर्डिंग टू WHO क्या है कि दिस मेथड कैन बी डन अप टू 9 वीक। सो मेडिकल अबॉर्शन कैन बी डन अप टू 9 वीक, इंडिया में था अप टू 7 वीक एंड WHO के अकॉर्डिंग है अप टू 9 वीक। एंड इट इज डन इन IPD, इट मीन्स कि आप अप टू 9 वीक तक तो कर सकते हो, बट आपको इन पेशेंट, आपको पेशेंट को एडमिट करना होगा। अकॉर्डिंग टू इंडिया की जो गाइडलाइंस है वो उसमें हमें एडमिट की नीड नहीं है, इट इज OPD बेसिस पे होगा, बट इट इज IPD बेसिस पे होगा। अकॉर्डिंग टू WHO क्या है कि डे 1 पे हम क्या देंगे, सेम देंगे टैब मिफिप्रिस्टोन 200 mg ओरल। देन डे 3 पे हम यहाँ पे टैब मिजोप्रोस्टोल देंगे बट 800 माइक्रोग्राम देंगे। कैसे याद करना है कि थोड़ा लाइक अप टू 9 वीक तक हम इसको मेडिकल अबॉर्शन कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई डोज इज डबल। सो है ना, सो 400 माइक्रोग्राम, यहाँ पे 800 माइक्रोग्राम है। देन अगेन डे 15 पे वुमेन को बुलाएंगे for to ensure process has completed or not. So that is follow in India and according to WHO it is like that. ठीक है, so that is the medical abortion in the first trimester, very important. ठीक है, देन अप टू 7 वीक बेस्ट मेथड क्या है, डेट इज मेडिकल अबॉर्शन, जो कि अभी हमने देखा ये वाला। एंड आफ्टर 7 वीक इट मीन्स 7 to 12 वीक बेस्ट मेथड इज
सक्शन इवैक्यूएशन, है ना, हमने 3 मेथड पढ़े ना सर्जिकल का, सक्शन इवैक्यूएशन, मेंस्ट्रुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, मेंस्ट्रुअल रेगुलेटर सिरिंज। सो मेंस्ट्रुअल रेगुलेटर सिरिंज नाउ डेज हम फॉलो नहीं करते हैं, बेसिकली हम सक्शन एंड इवैक्यूएशन। एंड अगर सक्शन इवैक्यूएशन अगर क्योंकि आजकल अभी तक हमारे इंडिया में बहुत ऐसे हॉस्पिटल्स है पेरिफेरीज में जहाँ पे प्रॉपरली सक्शन एंड ऑल इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। सो इन दैट केस हम मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करते हैं ना, सो इट्स मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, इट्स नॉट मेंस्ट्रुअल, इट इज मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ठीक है ना। सो 7 to 12 वीक बेस्ट मेथड इज सक्शन एंड इवैक्यूएशन, बट अगर सक्शन अवेलेबल नहीं है उस पेरिफेरी साइड पे, देन ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव हमारा है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। देन यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, बेसिकली दिस इमेज बेस्ड। सो सक्शन इवैक्यूएशन में क्या करते हैं कि हिगार्स डायलेटर से सबसे पहले हम सर्विक्स को क्या करते हैं, हिगार डायलेटर से डायलेट करते हैं। सो दिस इज द हिगार डायलेटर। सो सबसे पहले हमने सर्विक्स को डायलेट किया। आफ्टर डायलेटिंग हम क्या करते हैं, कार्बन कैनुला को सक्शन से अटैच करते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द कार्बन कैनुला, ये हमारा कार्बन कैनुला है, इसको यहाँ सक्शन से अटैच करते हैं, ठीक है। एंड कौन सा कार्बन कैनुला हमें यूज करना है, सो नंबर ऑफ कार्बन कैनुला इज इक्वल्स टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। सो लेट्स सपोज अगर 9 वीक प्रेग्नेंट मदर है तो हम 9 mm ऑफ कार्बन कैनुला यूज करेंगे, ठीक है ना। एंड कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, 600 mm ऑफ Hg प्रेशर अप्लाई करते हैं। एंड आफ्टर प्रोसेस जब हम पूरा सक्शन इवैक्यूएट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम जो भी कुछ रहता है इन द प्लेसेंटा या फिर इन द यूट्रस कुछ भी रहता है तो उसको हम ब्लंट क्यूरेटिस से उसको प्रॉपर रिमूव करते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस इन सक्शन इवैक्यूएशन। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, सो दिस इज द बेस्ट मेथड इन 7 to 12 वीक। सेकेंड की हम इसमें हम कार्बन कैनुला यूज करते हैं एंड नंबर ऑफ कार्बन कैनुला का जो साइज है दैट इज इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। एंड प्रेशर कितना अप्लाई करते हैं, 600 mm ऑफ Hg, ठीक है। Alternative to suction evacuation, that is the manual vacuum aspiration. So both are same. Suction evacuation and manual vacuum aspiration both are approximately same ही है, but अगर आपके हॉस्पिटल में अगर सक्शन प्रॉपरली नहीं है तो वहाँ पे हम मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। सो ये MVA क्या है, MVA एक सिरिंज है, दिस इज द सिरिंज, है ना। सो इसमें हम प्रेशर खुद ही अप्लाई करते हैं, वैक्यूम अप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है ना। सो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज है, उसमें हम 600 to 660 mm ऑफ Hg, 600 बेसिकली, और बेस्ट आंसर हमारा है 660 mm ऑफ Hg प्रेशर अप्लाई करते हैं। एंड ये 60 ml की सिरिंज होती है एंड सेम आफ्टर प्रोसेस हम ब्लंट क्यूरेटिस करते हैं। सो द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सक्शन इवैक्यूएशन और मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन इज perforation. So most common complications क्या देखने को मिलता है, that is perforation. So in the first trimester up to 7 week the best method is that is medical abortion. Medical abortion में हम क्या करेंगे इन इंडिया, डे 1, डे 3, डे 15। डे 1 पे हम मदर को देंगे टैव मिफिप्रिस्टोन 200 mg ओरल। डे 3 पे हम देंगे टैव मिसोप्रोस्टोल 400 माइक्रोग्राम इधर ओरल, बक्कल, परवेजाइनल और पररेक्टल। एंड डे 15 पे हम प्रोसेस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, वी हैव टू इंश्योर एंड इट इज डन ऑन OPD बेसिस। बट अकॉर्डिंग टू WHO ये हम IPD बेसिस पे करेंगे, अप टू 9 वीक तक कर सकते हैं। एंड ऑल द थिंग इज सेम, ओनली द टैब मिसोप्रोस्टोल हम यहाँ पे 800 माइक्रोग्राम देंगे, सिंपल। इन सर्जिकल में अब फ्रॉम 7 to 12 वीक द बेस्ट मेथड is suction evacuation by using Karman cannula. The size of Karman cannula is equals to period of gestation. Pressure that we are apply is that is 600 mm of Hg. And alternative अगर suction available नहीं है, so alternative to suction evacuation is manual vacuum aspiration. And these are the image, very very important. This is the image of manual vacuum aspiration syringe, right? And this is the Karman cannula. This is Hagar dilators, ठीक है। सो अब इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया। कमिंग टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेम मेडिकल एंड सर्जिकल। सो मेडिकल में यहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है कि हमें मदर को एडमिट करना होगा। लाइक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने क्या किया, OPD बेसिस पे कर दिया, घर पे ही मदर को बोला कि ये टैबलेट ले लेना डे 1 पे, डे 3 पे एंड डे 15 पे आप आना जस्ट। बट यहाँ पे हमें मदर को प्रॉपरली एडमिट करना होगा। एंड मेडिकल में हमारा क्या है, दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन, द बेस्ट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन। सो प्रोस्टाग्लैंडिन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि
मिजोप्रोस्टोल PGE1 दैट इज द बेस्ट। ठीक है, इसमें हम 200 to 800 माइक्रोग्राम इधर परवेजाइनली देते हैं, परवेजाइनल देते हैं एवरी 4 आवर्ली एंड मैक्सिमम हम 5 डोज दे सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है कार्बोप्रोस्ट दैट इज PGF2 अल्फा एंड थर्ड हमारे पास है ड्यूरोप्रोस्टिन दैट इज PGE2। ठीक है, सो 3 हमारे पास है। द बेस्ट वन इज मिजोप्रोस्टोल। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं, सारे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं है। द बेस्ट वन इज द मिजोप्रोस्टोल। ठीक है ना। एंड इन मेडिकल में हमारा अदर्स मेथड भी है जो कि अब आउटडेटेड है। नो, दीज आर आउटडेटेड, अब हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, बट येस फॉर योर एग्जाम यू शुड नो, मे बी दे कैन आस्क, है ना। सो क्या क्या हमारे पास है, एक हमारा है एक्स्ट्रा अमनियोटिक एथासाइनाइड 0.1%। सो बेसिकली क्या करते हैं, ये बेबी है, लेट्स सपोज दिस इज फीटस, ये हमारा फीटस है, ये हमारा अमनियोटिक मेम्ब्रेन है, ये हमारा यूट्रस है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अमनियोटिक एथासाइनाइड 0.1% हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन एक्स्ट्रा अमनियोटिक में, एंड वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ये रीअब्सॉर्ब एंड फिर बेबी को जो फीटल डेथ हो जाता है। सो दैट इज द एक्स्ट्रा अमनियोटिक एथासाइनाइड 0.1%। एंड सेकेंड हमारा है इंट्रा अमनियोटिक सलाइन 20%। सो 20% सलाइन बेसिकली हम इन द अमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। एंड थर्ड हमारा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना। सो दिस 3 आर अदर्स। सो मेडिकल में हमारे पास एक तो है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसमें हमारा मिजोप्रोस्टोल बेस्ट है। सेकेंड हमारा है एक्स्ट्रा अमनियोटिक एथासाइनाइड और इंट्रा अमनियोटिक सलाइन, एंड थर्ड इज द ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना। सो दीज आर द मेडिकल मेथड। ठीक है ना। एंड सेकेंड हमारा है सर्जिकल। सो सर्जिकल में हमारे पास है डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। सो बेसिकली सर्जिकल मेथड में हम क्या यूज करते हैं, दैट इज द डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। सो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्विक्स को डायलेट करेंगे सिंपली विद द हेल्प ऑफ दिस हेगार्स डायलेटर। हम सर्विक्स को डायलेट करेंगे। डायलेट करने के बाद यूजिंग ओवम एंड स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स अंडर पैरासर्वाइकल ब्लॉक। सो हम पैरासर्वाइकल ब्लॉक देंगे एंड बाय यूजिंग दिस ओवम फोर्सेप्स हम जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है ना। एंड आफ्टर प्रोसेस हम ब्लंट क्यूरेटिस करेंगे। सो दैट इज द डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। सो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन इज द बेस्ट इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा है सक्शन एंड इवैक्यूएशन और मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में है डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको मेडिकल अबॉर्शन का डे 1, डे 3, डे 15 पता चल गया, एंड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारा मेडिकल अबॉर्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन में भी हमारा मिजोप्रोस्टोल बेस्ट है। मिजोप्रोस्टोल में हम बेसिकली 200 to 800 माइक्रोग्राम पर वजाइनल देते हैं एवरी 4 आवर्ली एंड मैक्सिमम हम 5 डोज देते हैं। सो दीज आर द मेथड ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बाय यूजिंग मेडिकल एंड बाय यूजिंग सर्जिकल। ठीक है ना। सो बहुत सिंपल टॉपिक था ये, बट येस अगेन दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक कि फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे करते हैं एंड व्हाट ऑल द चेंजेस दैट हैज अकर्ड कि अप टू 24 वीक तक हम which all the cases we can do MTP till 24 week. So these are the important point that you have to remember. Just revise 2 to 3 times, आपको बहुत इसलिए याद हो जाएगा। अगर डोज में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कुछ डोजेस तो इम्पोर्टेंट है, लाइक फर्स्ट टाइमेस्टर का डोज इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको आप अपने एक अलग से अपने वोलेटाइल वाला जो छोटी नोटबुक बना रखी है उसमें लिखो एंड डेली रिवाइज करो, बहुत इजीली आपको डोज भी याद हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो आई होप दिस टॉपिक हैज क्लियर फॉर यू पीपल। ऑल द बेस्ट।